Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am teacher Nabila, senior subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. I hope all of you are fine and attending the lectures regularly. Students, we are studying chapter number 2, experimental techniques used in chemistry. You have studied some techniques as filtration, crystallization, sublimation, solvent extraction. Today, the topic of our discussion is chromatography. It is 2.5 topic of our textbook and last topic of second chapter. Students, the main objective of today's lesson is we learn how different pigments, colored or colorless, are separated by chromatography. A Russian scientist Svet in 1906 used a glass column packed with finely divided calcium carbonate to separate plant pigments. These pigments, after separation, appeared as colored bands that can come out of the column one by one. He was the first person to use term chromatography, derived from two Greek words. Chroma means color and graphein means writing. It means ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कलरलेस पिगमेंट्स के कलर्स डिवेल्प हो जाती हैं. एक्चुअली शुरू में हम इस टेक्निक को ऐसी सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते थे जो कलर्ड हों, जैसे हर्बल पिगमेंट्स. बट नाउअडेज इस एप्लीकेशन एरिया इज एक्सटेंडेड एंड chromatography is accepted as an extremely sensitive and effective separation method. Students, chromatography is defined as it is a method used for the separation of a sample of a mixture. It involves the distribution of solute between a stationary phase and a mobile phase. Here are two phases, stationary phase and mobile phase. Stationary phase may be solid or a liquid spotted as a thin film on the surface of an inert solid, यानी ये ऐसी फेज है जो अपनी ही जगह पर रहती है और मूव नहीं करती. And mobile phase, it may be liquid or gas. The mobile phase flowing over the surface of the stationary phase. यानी जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं वो मोबाइल फेज में आ जाती हैं, और यानी जब ये स्टेशनरी फेज के ऊपर से मोबाइल फेज फ्लो करेगी तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपने साथ ले जाएगी और इस तरह से वक्फे से मिक्सचर के कंपोनेंट्स लैदा हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वॉच दिस वीडियो. इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को यूज करते हुए कंपोनेंट्स अलग हो जाती हैं. There are techniques in organic chemistry that collectively are known as chromatography. Chromatography lets you separate and identify different compounds in a mixture you want to analyze. Adsorption onto and desorption from a stationary phase happen while components are swept along by a mobile phase. Chromatography lets you separate and identify different compounds in a mixture you want to analyze. The stationary phase and the mobile phase interact with different compounds in different ways. That is why components move at different rates through the apparatus
and start to separate. Chromatography lets you separate and identify different compounds in a mixture you want to analyze. Results from samples with a known composition can be compared with the mixture that you have at hand. Chromatography lets you separate and identify different compounds in a mixture you want to analyze. Now students, we see what is the purpose of chromatography, यानी हम इस फिनोमेनन को क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स को उनके साइज, चार्ज, पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी के बेस पर अलग करते हैं। इसका एनालिटिकल पर्पस ये है कि हम किसी भी केमिकल कंपोजिशन सैंपल की फाइंड कर सकते हैं, और इसका प्रेपरेटिव पर्पस ये है कि हम सैंपल के एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। यानी अगर किसी मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और हम उनको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। What are the principles of chromatography? यानी किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करते हैं। Chromatography is used when there is a difference in the retention times of the different components, यानी मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनका रिटेंशन टाइम डिफरेंट होना चाहिए। इमिजिबल स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, यानी स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज को इमिजिबल होना चाहिए, यानी वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो सके। An arrangement where a mixture is deposited at one end of the stationary phase, flow of mobile phase towards the other end of the stationary phase, यानी अरेंजमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि मिक्सचर की स्टेशनरी फेज के एक एंड पर डिपॉजिट हो मिक्सचर, और मोबाइल फेज का फ्लो स्टेशनरी फेज के दूसरे एंड की तरफ हो। डिफरेंट रेट्स ऑफ पार्टीशनिंग फॉर ईच कंपोनेंट, यानी हर कंपोनेंट की अलग होने का रेट मुख्तलिफ हो। मीन्स फॉर विजुअलाइजिंग द सेपरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी हर कंपोनेंट को हम अलग अलग विजुअलाइज कर सकें, यानी देख सकें। नाउ वी सी व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। Students, substances are separated due to their relative affinities for the stationary phase and mobile phase. Relative affinities means their property to attract. It depends upon the value of K. K is called distribution coefficient. Its formula is concentration of a component in a moving phase divided by concentration of a component in the stationary phase. Students, the components with small value of K remains in the stationary phase, and the component with greater value of K remains largely in the mobile phase. Students, if it has no affinity for water, then it will travel at maximum speed just behind the solvent front. If the pigments has no affinity for non-polar phase, then it will remain stuck at the region of application. There are some pigments which dissolve in water and they are pulled with water farther up to the paper. Others are more attractive to the paper and move more slowly. यानी आमतौर पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर तक मूव करते हैं as compared to the larger molecules. So in that case, smaller molecules moving mixture में आ जाते हैं और मूविंग फेज में आ जाती हैं, और वो मूविंग फेज के साथ साथ यानी मोबाइल फेज के साथ साथ मूव करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हाउ दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड।
स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर था हमारे पास, उसको जब हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रखा जिसमें सूटेबल सॉल्वेंट का मिक्सचर ऑलरेडी मौजूद था। मोबाइल फेज मूव करती हुई जब स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजरी तो वो इन कंपोनेंट्स को अपने साथ ले गई और ये कंपोनेंट्स वक्फे वक्फे से एक दूसरे से अलग होते गए। इस तरह मिक्सचर के तमाम कंपोनेंट्स अलग हो गए। Now we see what are the types of chromatography. Here are two types of chromatography: adsorption chromatography and partition chromatography. Adsorption chromatography इसमें स्टेशनरी फेज आम तौर पर सॉलिड होती है और इसमें सब्सटेंस मोबाइल फेज को छोड़ देती है ताकि वो सॉलिड फेज में एड्सॉर्ब हो सके। इसकी एग्जांपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम TLC भी कहते हैं। TLC is a method for analyzing mixture by separating the components in the mixture. It is very sensitive technique and quantities in micrograms can be analyzed by this technique, and it takes a little time for an analysis, about 5 to 10 minutes. Students, this technique is used to identify the number of components present in the mixture. यानी इस टेक्निक में अगर सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हों तो हम उन तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज आमतौर पर लिक्विड होती है और इसमें कंपोनेंट्स दोनों स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में सेपरेट होती हैं। In this technique, in stationary phase, liquid is more polar than the mobile phase. इसमें सेलुलोज पाउडर और सिलिका जेल हम क्रोमेटोग्राफी में स्पोर्ट के तौर पर यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो कि आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। There are many other types of chromatography as gas chromatography, column chromatography, HPLC, high performance liquid chromatography and liquid chromatography, but these are not in our syllabus. Students, now we discuss in detail paper chromatography, which is the main topic of chromatography. Paper chromatography is a qualitative analytical chemistry technique which is used for separating and identifying dissolved substances from one another. It is often used when the dissolved substances are colored as inks, food coloring and plant dyes. This technique is often used when the dissolved substances are colored. Students, now we see what is the principle of paper chromatography. It is a partition chromatography जिसमें सब्सटेंसेस लिक्विड फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इसमें स्टेशनरी फेज वाटर या कोई इनऑर्गेनिक लिक्विड होता है और मोबाइल फेज में कोई ऑर्गेनिक लिक्विड यूज होता है। स्टूडेंट्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी में चूंकि पेपर यूज होता है, हम देखते हैं कि इसमें जो पेपर यूज होता है उसकी नेचर क्या है। मोस्टली पेपर यूज इज मेड ऑफ सेलुलोज, लेकिन हम इसके अलावा पेपर टॉवल्स और कॉफी फिल्टर्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर का इनएक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट है, यानी फिल्टर पेपर्स कॉस्टली होती हैं। अगर एक इनएक्सपेंसिव वे देखना चाहती हैं तो हम इसकी जगह पर दो और चीजें भी यूज कर सकती हैं, कॉफी फिल्टर्स और पेपर टॉवल्स। नाउ वी सी व्हाट आर द वेज ऑफ कैरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। There are many ways by which we can proceed paper chromatography. These are ascending chromatography, descending chromatography, radial or circular chromatography. Now we see ascending chromatography. Ascending means lower to higher. इसमें स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स नीचे से ऊपर की तरफ सेपरेट होती हैं, यानी वो कंपोनेंट्स जिसकी RF की वैल्यू कम होगी
वो पहले सेपरेट होंगे और जिसकी RF की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में सेपरेट होंगे। फिगर में आप देख सकती हैं कि ये कंपोनेंट्स नीचे से ऊपर की तरफ सेपरेट हो रहे हैं। In ascending chromatography, the solvent is in a pool and at the bottom and moves up by capillary action. Descending chromatography, descending means top to bottom. इसमें कंपोनेंट्स ऊपर से नीचे की तरफ सेपरेट होती हैं। फिगर में आप देख सकती हैं। In descending chromatography, solvent is in a trough at the top and flows down by gravity. रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में स्पॉट को सर्कुलर पेपर के दरमियान में लगाया जाता है and solvent flows through a wick at the center and spreads in all directions uniformly as you can see in the figure. यानी सेंटर में हम ड्रॉप लगाते हैं और फिर कंपोनेंट सेंटर से बाहर की तरफ सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। Now we see which apparatus is used for paper chromatography. It is spot of paper, solvent trough, air-tight chamber, Whatman filter paper number 1, capillary tubes, sample, solvents and platinum loop. यानी हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। Now we come to the procedure of the paper chromatography. इसमें हम तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबी वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 की एक स्ट्रिप लेती हैं और इस पर पेंसिल से एक लाइन लगाती हैं जो बॉटम से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर हो। फिर इसके पेपर के सेंटर में एक और लाइन लगाती हैं जो पहली लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम कैपिलरी ट्यूब लेती हैं और मिक्सचर में उसको डिप करती हैं और एक ड्रॉप लेकर फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पर पॉइंट P के ऊपर लगाती हैं। अब पेपर को ड्राई करती हैं ओपन एयर में। अब फिर हम कैपिलरी ट्यूब को मिक्सचर में डिप करती हैं और ड्रॉप पहले वाले ड्रॉप के ऊपर एक दफ़ा फिर लगाती हैं और फिल्टर पेपर को ड्राई करती हैं। अब हम डिस्टिल्ड वाटर लेती हैं 5 ml मेजरिंग जार में और इसको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डाल देती हैं। अब हम 5 ml अल्कोहल लेती हैं मेजरिंग जार में और इसको भी हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डाल देती हैं जिसमें ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है। अब कैपिलरी ट्यूब से हम मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। दिस मिक्सचर इज नाउ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अब फिल्टर पेपर लेती हैं और इसको फिल्टर क्रोमेटोग्राफिक टैंक में सस्पेंड कर देती हैं। फिल्टर पेपर को इस तरीके से सस्पेंड करती हैं कि इसका ड्रॉप सॉल्वेंट से ऊपर रहे, यानी वो सॉल्वेंट में डिप ना हो और क्रोमेटोग्राफिक टैंक को कवर कर देती हैं। कलर सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। जब हम देखेंगे कि सॉल्वेंट ने 3/4 तक राइज हो गया है तो हम फिल्टर पेपर को निकाल लेंगे और पेंसिल से एक लाइन लगाएंगे जहां तक सॉल्वेंट ने मूव किया। इसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहती हैं। फिल्टर पेपर को ड्राई कर लेती हैं। अब रेड और ब्लू इंक वाले स्पॉट्स को हम सर्कल करती हैं। अब हम ओरिजिनल लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का डिस्टेंस मेजर करती हैं। फिर हम ओरिजिनल लाइन से ब्लू और रेड इंक का डिस्टेंस मेजर करती हैं और RF की वैल्यू फाइंड कर लेती हैं बाय अप्लाइंग फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। इससे हमें RF की वैल्यू मिलती है ब्लू इंक के लिए 0.98 एंड रेड इंक के लिए 0.88। इस तरह से मिक्सचर के तमाम कंपोनेंट्स की हम वैल्यूज RF वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी सी हाउ वी लोकेट द कंपाउंड। हम जब फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक से बाहर निकालकर ड्राई करती हैं
तो इसमें बाज कंपाउंड्स में कलर अपीयर नहीं होते। इस सूरत में हमें कोई फिजिकल या केमिकल टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है ताकि हम इनको कलर्स को डेवलप कर सकें। इस तरह से मिलने वाला क्रोमेटोग्राम अनडेवलप्ड क्रोमेटोग्राम कहलाता है, यानी इसमें कंपोनेंट सेपरेट तो होती हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे होते, इसलिए हम इसको अनडेवलप्ड क्रोमेटोग्राम कहते हैं। नाउ वी आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। अब अगर हमारे पास स्पोर्ट्स कलर हैं या जैसे इंक वगैरह में हमने देखे थे, तो हम ओरिजिनल लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का डिस्टेंस मेजर करती हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रही हैं, ये ओरिजिनल लाइन है, यहाँ से हमने सॉल्वेंट फ्रंट तक का डिस्टेंस मेजर किया। इस तरह से इसमें जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, येलो, पर्पल एंड ब्लू, इसमें भी हम ओरिजिनल लाइन से इन स्पॉट्स तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। RF इज इक्वल टू distance traveled by the components from the original spot and the distance traveled by the solvent from the original spot. Then we calculate the RF value for each component. Students, there are some factors which affect the RF values. These factors are solvent system and its composition, temperature, the quality of the paper, distance and distance थ्रू विच द सॉल्वेंट रन्स। यानी ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो RF वैल्यू के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वो डिटेक्ट द कंपाउंड, यानी अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स के स्पॉट्स थे वो कलर्ड नहीं थे, तो उसके लिए हम कोई भी फिजिकल और केमिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे ताकि हम उनमें कलर डिवेलप कर सकें। तो आमतौर पर हम नीन हाइड्रन या कोई और भी केमिकल यूज कर सकती हैं, तो नीन हाइड्रन यूज करती हैं जिसका उन कंपोनेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन होगा और स्पॉट्स के कलर अपीयर हो जाएंगे। अब जो फिल्टर पेपर हमें यहाँ पर मिलेगा उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। स्टूडेंट्स, द कलर डेंसिटीज ऑफ दीज स्पॉट्स may be measured with the recording photometer device. Students, there are certain limitations of paper chromatography. यानी हम हर एक मिक्सचर के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी अप्लाई नहीं कर सकते। Now we see what are these limitations. Large quantity of sample cannot be applied on a paper chromatography. अगर हमें मिक्सचर की ज्यादा क्वांटिटी को लेना है तो फिर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। In quantitative analysis, paper chromatography is not effective. क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन हम क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है यानी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो उनको भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। Less accurate method as compared to the other techniques as HPLC, यानी बाकी टेक्निक्स के मुकाबले में पेपर क्रोमेटोग्राफी एक लेस एक्यूरेट टेक्निक है। Now students, there are some points which should be kept in mind. These points are chromatographic paper should not touch the sides of the chromatographic tank, यानी पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक की साइड्स को टच नहीं करना चाहिए। Wear gloves when handling the chromatographic paper, यानी हमें ग्लव्स पहनने चाहिए जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हों ताकि हमारे हाथों पे लगी हुई इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर पे ना जा सके। फिल्टर पेपर शुड बी स्टेपल्ड सो दैट द एजेस डू नॉट टच ईच अदर, यानी फिल्टर पेपर को हमें स्टेपल करना चाहिए ताकि उसके एजेस जो हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। इस तरह से भी रिजल्ट्स हमारे सही नहीं आएंगे। द स्पॉट्स ऑफ द सैंपल शुड नॉट डिप इन द सॉल्वेंट, और जो स्पॉट्स हैं उनको सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए वरना रिजल्ट हमारा ठीक नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, वी सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल्स, यानी मेडिसिन में उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करती हैं। टू डिटेक्ट द कंटेमिनेट्स इन फूड्स एंड ड्रिंक्स, फूड्स एंड ड्रिंक्स में अगर कंटेमिनेट्स मौजूद हैं और उनके कंटेमिनेट्स को फाइंड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए।
to the study of ripening and fermentation, for the detection of drugs and dopes in animals and humans, used to identify drugs, poisons and many other substances, to analyze the reaction mixtures in biochemical labs, यानी ये देखने के लिए कि reaction mixture के अंदर कौन कौन से components मौजूद हैं, and it is used in sequencing of RNA and DNA, यानी RNA और DNA का सीक्वेंस को चेक करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का फिनोमेना यूज करते हैं. Now we see what are the disadvantages of chromatography. Volatile substances cannot be separated using paper chromatography techniques. ऐसी volatile substances ऐसी substances होती हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, तो ऐसी substances को हम paper chromatography के जरिए separate नहीं कर सकते. Paper chromatography cannot be compatible with large amounts of the sample. Quantitative analysis is not useful in paper chromatography, यानी हम क्वांटिटी को नहीं मेजर कर सकते पेपर क्रोमेटोग्राफी में, इसलिए उसके लिए भी हम इसको यूज नहीं कर सकते. कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इज नॉट सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक, कि अगर नंबर ऑफ हमारे पास मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं तो उनको भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते. पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज लेस एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द अदर टेक्निक्स. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज लेस एक्यूरेट. डाटा कैन नॉट बी सेव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी इसमें जो डाटा हम सेव करते हैं वो ज़्यादा देर तक हम सेव नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी, यानी हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज करते हुए एक मिक्सचर में से कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. हमने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ी. एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखी. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, और पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने डिटेल में पढ़ा. आरएफ वैल्यूज कैसे फाइंड करती हैं, जो मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होती हैं उनकी आरएफ वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं. लिमिटेशंस क्या हैं क्रोमेटोग्राफी की, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हमने पढ़े. स्टूडेंट्स, नाउ वी रिपीट द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी with the help of an other video so that you may understand it easily. Students, it is very interesting video. I hope you will enjoy it. Please take my cup. Please, get me the schedule. Does black ink consist of only black color or any other color as well? Let us find out by the process of paper chromatography. Chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantities. Wake up. Wake up. Please come here. Yes. Please, wake him up. Do something. Wake him up. Take a strip of filter paper. Draw a line with a pencil close to the lower edge of the paper. No response. Please, call the dropper. Please, wake him up. Put a small drop of ink on the center of the line. Let it dry for some time. No response. Call Mr. Smart. Please, wake him up.
take a jar containing some water, put the filter paper in it such that the drop of ink is just above the water level. No response. After some time, the water starts gradually rising up by capillary action. As the water moves up, it takes the dyes present in the ink along with it. As the water rises up, we see different colors on paper. These are the different dyes present in the ink. Different dyes have different solubility levels and travel at different speeds as the water rises up. As a result, we see different colored strips at different heights, and the dyes get separated. Hence, paper chromatography is used to separate the different colors in a dye. Now students, assignment for you. What is difference between adsorption chromatography and partition chromatography? What is meant by RF value? What are the disadvantages of paper chromatography? How we develop the chromatogram? What are the bases of chromatography? Students, I hope आपको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा. Thank you very much students. May God bless you.